Alexa, lights on. Sir, your delivery, sir. Alexa, what's the time? Hi, Uncle. तुम कहाँ पर हो? मैं बेडरूम में हूँ बेबी। तुम कहाँ? मैं शावर लेने जा रही हूँ। तुम्हें वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना, मुझे तुम्हें अभी देखना है बेबी। नो वे। I want to see the birthday girl. तुम शाम को आ रहे हो ना, तब देख लेना। हे बेबी, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे? जी नहीं, इंतजार करने में भी अपना ही थ्रिल होता है। हे सिद्धू, देख कर चलना। प्रीति लाइन पे है यार। ये तुझे क्या दिखा रही है? दिखा, मुझे भी दिखा। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो प्रीति सिद्धू? मुझे बहुत बिजी सी है। काम काम काम। हम सब काम में बहुत बिजी हैं। हमारी इस टाइम कंसर्न लाइफस्टाइल में हमारी सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूएस में रहने वाला तुम्हारा कजिन तुम्हारी शादी में नहीं, अब दूसरी लोकेशन पर होने की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा बर्थडे मिस कर देती है, या तुम्हारी लॉस के यहाँ तुम्हारी बेटी तुम्हें मिस कर रही है। ये सारे रूटीन इश्यूज हम रोज फेस करते हैं, इसलिए ऐप की टेक्नोलॉजीज आपके सामने लाई है एक नया ऐप सी। इस ऐप के थ्रू तुम्हारा कजिन तुम्हारी शादी को वर्चुअली अटेंड कर सकता है ना कमाल का? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आके तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकती है। तुम अपनी बेटी के साथ बैठ के उसकी फेवरेट कार्टून्स भी देख सकते हो। होलोग्राम टेक्नोलॉजी और 3D इमेजिन के थ्रू मनचाही जगह पे वर्चुअली पहुंचा भी जा सकता है। ऑलरेडी इस सेगमेंट में कुछ ऐप्स और टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। Ours is most portable and secure app. And right now, this app is currently the hottest thing in the world. टेस्टिंग हमने कंप्लीट कर ली है, जल्दी हम बेटा वर्जन भी रिलीज करेंगे। Well guys, that's it किया था। Bye guys. सिद्धू, सिद्धू, हे सिद्धू, प्रेजेंटेशन के बीच कौन फोन कर रहा है? फोन साइलेंट रखा कर। प्रीति ने डिनर के लिए मैसेज किया यार। इट्स अ बर्थडे, यू नो। तू जा रहा है? सरप्राइज? तू सच में पूरा पागल है। छूना मत। बेबी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आज डिनर पे नहीं आ पाऊंगा। मैं ऑफिस में कुछ काम में फंस गया हूँ यार। प्लीज माइंड मत करना। लव यू। सर फ्लावर्स। ओह, तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। तुम एयरपोर्ट पर पहुंच गए? आई एम एट द एयरपोर्ट यार। फ्लाइट की का टाइम हो गया। सिद्धू, आई रियली मिस यू। मिस यू टू बेबी। I love you more, baby. अगर मैं तुम्हारे सामने अभी आ जाऊँ तो तुम क्या करोगी बोलो? I know you have some work. हाँ, तुमने सही कहा। काम भी बहुत जरूरी है यार। बर्थडे का చూసామండి కదా ఛా మంచి జాబ్ చేశారులే ఒకవేళ सिद्धू, सिद्धू एयरपोर्ट లో ఉన్నానన్నా. 1 second. सिद्धू, प्रीति, सिद्धू, सिद्धू. అయ్యి వండే కూడా అవ్వలేదు నా గుండె ఇంకా నమ్మలేదు గంటి రప్ప కింద తడి ఇంకా రానైనా లేదు ఇంతలోనే ఇంకోడితో క్లించేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీలే పెట్టకు నా మనసుని ఇష్టం వచ్చినట్టు చిత్త కొట్టకు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు పోయిందల్లా పాస్ట్ అయినట్టు జరిగిందంతా వేస్ట్ అయినట్టు మోటివేషన్ కొటేషన్లు గూగుల్ నుంచి కాపీ చేసి బ్యూటీ మోడల్ సెల్ఫీ తీసి అని
ఎన్ని దాగే చేసి ఫేస్బుక్ వాళ్ళు పైన పోస్ట్ వేయకు నా పిడికేడంతా గుండెకి పోస్ట్ మాటం చెయ్యకు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు ఈ జనరేషన్ పిల్ల కానీ కాదా నేను మరి నీలాగా మూవ్ ఆన్ ఎందుకు కప్పలేను ఐ లవ్ యూ నా బేబీ అంటూ డైలీ నువ్వు వాట్సాప్ లో వచ్చేసి నా చాట్కి వాల్యూ ఇవ్వు మన పాస్ట్ అసలు గుర్తే రాదా నీ కొంచెమైనా గిల్టీ లేదా ఎన్ని రకాలుగా ఎంత కసాయిగా నన్ను బ్లాకింగ్ చేసినావే బొమ్మ చూపించేసినావే టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు ఫుల్ కొట్టినా కిక్కు ఎక్కట్లేదు తోపులాగినా హై అసలేదు పబ్బకెళ్ళినా మూడు వరట్లేదు ఈ పెయిన్కి అసలు ఫుల్ స్టాప్ లేదు మన పాస్ట్ అసలు గుర్తే రాదా నీ కొంచెమైనా గిల్టీ లేదా ఎన్ని రకాలుగా ఎంత కసాయిగా నన్ను గోస్టింగ్ చేసినావే ఫుల్ రోస్టింగ్ చేసినావే టైం పాసింగ్ చేసి నువ్వే సంకనాకించేసినావే నీకు నాకు బ్రేకప్ అయ్యి వండే కూడా అవ్వలేదు అంటే ఇంకా నమ్మలేదు కంటి రెప్ప కింద తడి ఇంకా రానైనా లేదు ఇంతలోనే ఇంకోడితో ఇకలించేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీలే పెట్టకు నా మనసుని ఇష్టం వచ్చినట్టు చిత్త కొట్టకు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు నిన్ను కొంచెం కొంచెం మర్చిపోయే టైం ఇవ్వు 4 दिन में टेस्टिंग शुरू होनी है, 10 दिन में ऐप लॉन्च है और तू नशे में यहाँ पड़ा है। पूरा मैनेजमेंट इस बात से परेशान है। चलो जा पहले नहाने जा जा। तो हम चले? ऐसे चट्टी में चलेगा? क्या चड्डी? पैंट पहन। अच्छा हुआ जो तुझे शादी से पहले ही उसके बारे में पता चल गया। ब्रो, तूने जब देखा था तो वो दोनों किस पोजीशन में थे? डिटेल्स मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, थोड़ा डाउट तो मुझे भी है। तेरी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या थी जब तूने उनको देखा था? सरप्राइज तो उनको करना चाहता था, लेकिन लगता है खुद ही सरप्राइज हो गया। साले तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है। ला मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा था। सिद्धू ले ले तू, सिद्धू ज्यादा बोल रहा है तुझसे, पागल हो गया क्या? ए, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देता है तू? तुझे लगा लोग तेरी आरती उतारेंगे? गुस्से पर काबू रख तू। स्कूटी की चाबी ले, जो करना है कर। What the hell? Are you okay? क्या यहाँ पे? चल लगी गाड़ी में बैठ। नमस्ते सर। ओह संजय सर, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? आपको कितनी बार बताना पड़ेगा? सारे सीनियर सिटीजन मिसिंग केसेस अब सुसाइड है। आज मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ, अपने बेटे के लिए आया हूँ। ये तुम्हारा बेटा? तेरे दादा के चक्कर में वैसे मुझे यहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब तेरे शुरू हो गए। मैं एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़कर आया हूँ। जब पता चला तुझे पुलिस ले गई है। आप किस लिए गुस्सा है? मैं पुलिस स्टेशन में था इसलिए, आपकी मीटिंग मिस हो गई इसलिए। सिद्धू,
तू स्कूटी लेकर आ, चल। मैं स्कूटी पर नहीं, तेरे पापा के साथ आई हूँ। सिद्धू, जब हमारे पास घर है तो उस छोटे घर में क्यों रहना है? चल घर चल, मुझे आपके घर नहीं जाना। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरे दादाजी घर छोड़कर चलेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं रोज यहाँ चक्कर लगाता हूँ, हर तरह से उन्हें ढूंढने की कोशिश की। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तूने कभी हमें फोन भी किया है? तेरी माँ तेरे लिए कितनी परेशान है पता है? यू डोंट हैव एनी कंसर्न ऑन अस। अगर आपको जरा भी कंसर्न होता तो दादाजी घर छोड़कर नहीं जाते। सिद्धू नहीं। तुम चुप करो, पहले उन्हें घर वापस लाइए, फिर मैं सोचूंगा। तो फेसबुक पर नहीं हो? नहीं। और क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता। वहाँ पर तुम अपनी फोटोज पोस्ट कर सकती हो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? वहाँ से मुझे देख सकते हैं। सबने देखा तो क्या? तुम्हें बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। लाइक मिलने से क्या होता है? मेरा मतलब अगर मुझे बहुत सारे लाइक मिलेंगे तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। देखा, तुम्हें खुद नहीं पता होगा, इसलिए मैं विपन नहीं हूँ। तो तुम फोटोज भी नहीं लेती? नहीं। पर क्यों? कभी जरूरत नहीं लगी। पोस्ट ऑफिस नंबर 535573। सूरज आज बहुत देर से निकल रहा है। इस याद को कैप्चर करने के लिए मेरे सामने एक लड़की सेल्फी ले रही है। सब लोग ऐसे ही हैं। हम सब कैसी भी यादों को स्टोर करके रखना चाहते हैं। पर एक सेल्फी में क्या होगा? उसमें सूरज रहेगा, बारिश भी रहेगी, पर उन्हें देखकर जो हमें एहसास हुआ, उनमें वो एहसास नहीं होगा। इसीलिए मुझे जर्नल लिखना पसंद है। शायद उन्हें देखते हुए हमने जो फील किया था, उस फीलिंग्स को हम शब्दों में बांध कर रख सकते हैं। हम जब यादें बनाएंगे तभी तो हमारी यादें बनेंगी। जो चीजें हम याद रखते हैं उन्हें शायद ही हम कभी भूलते हैं। अगर हमें हमारे पहने हुए कपड़े या जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था और हम जिस बारे में बात कर रहे थे, अगर हमें ये सब याद नहीं रहेगा तो हम उस वक्त में जिए ही नहीं। इस डायरी में मैं जो लिख रही हूँ वो मोमेंट्स नहीं है, ये वो पल है जो मैंने खुद जिए हैं। मैं पहली बार हैदराबाद जा रही थी। आओ आओ, कैब मैडम, मैडम कैब मैडम। थैंक्स भाई, मेरी फ्रेंड लेने आ रही है। क्या मजाक कर रही है मैडम, सब लोग टैक्सी से ही जाते हैं, कोई लेने नहीं आता। हाँ? तुम्हारे पास फोन नहीं है? अगर होता तो आराम से कैब बुक करके घर पहुंच सकती थी। संजू, पर यहाँ आते ही मैं तुझे तो नहीं मिल पाती, इसलिए मुझे करीब 45 मिनट वेट करना पड़ा, जो मुझसे कभी नहीं होगा। तू सडनली यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि मुझे वेंकट राव नाम के एक आदमी से मिलना है। मेरे दादा ने मुझे एक कवर पर्सनली उन्हें देने के लिए। इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, शायद ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
मिस्टर संदीप, आई एम योर न्यू नेबर। हम यहाँ आज ही आए तो ठीक है ना? एक्चुअली बॉस 1 सेकंड, मेरे सारे रिलेटिव यहाँ आए हुए हैं और हमें दूध उबालना। मेरा मतलब हमारे पास दूध है, हम माचिस लाना भूल गए। ब्रो सब वेट कर रहे हैं, सो बस मुझे माचिस चाहिए प्लीज। 1 मिनट। अंदर से धुआं क्यों आ रहा है? मेरे पास माचिस नहीं है, पर आग बहुत है, इसे काम चला लो। सृजना। हाय सृजना, ये ऐसे ही है, तू मेरे साथ चल। सब एक जगह रहते हैं तो हम उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं, पर यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता। संजना ने मुझे उन सबसे मिलाया है, पर उससे पहले उन्हें एक दूसरे से मिलना चाहिए। मार उसे। तो क्या कर रही है? उसे जल्दी से मारना। सुन। क्या बात है? जल्दी से मारना उसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग इसे मारकर खाने वाले हो? इसे मारेंगे तो खाना पड़ेगा क्या? जहाँ तक मुझे पता है हमें तब तक जान नहीं लेनी चाहिए जब तक सवाल खाने का ना हो। परफेक्ट, तुम लोगों ने कर दिया। तूने मच्छर क्यों खा लिया? किसी को अगर मारो तो उसे खा लेना चाहिए। तो गाइस, अब क्लाइंट हमारे बेटा वर्जन को देखने वाले हैं। किसी मेंटल हॉस्पिटल से होकर आया है क्या? बोला था ना मुझे डायरी मिली और उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। उस डायरी में कुछ भी काम की बात नहीं मिली तुझे? अब तुम उसके साथ क्या करोगी? चलो इसे पाते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारी ये डायरी वाली थोड़ी पागल है। मेड इन 1990। अरे ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर ऐसा करता कौन है? उस लड़की को 2 साल लेट किया ना? कुछ पता चला तुझे? इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे कनेक्ट करना जरूरी है क्या? ये लड़की सबसे अलग है, मुझे इसे अब पूरा पढ़ना है। Hey, what's up? हाँ बाकी तुम्हारे साथ अर्जुन क्लाइंट से मीटिंग करेगा है? बट अजित, सारी कोडिंग सिद्धू ने की है, so only he can answer all the questions. Come on बाकी, अगर क्लाइंट के सामने भी ऐसे कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो हमें फंडिंग भी नहीं मिलेगी, जिसके बाद हमें ऑफिस भी बंद करना पड़ेगा। Let's be honest, Ajit. Only he has all the knowledge on this. Fine. If anything goes wrong, you both are fired. ये लड़की हैदराबाद क्यों आई है? सुन नंदू, ये फोन ले और लोकेशन गूगल मैप्स पर सर्च कर ले। एड्रेस आसानी से मिल जाएगा। फिर तुझे देना है आराम से दे आना। जरूरत नहीं है। फिर तू कैसे जाएगी? मैं बस ले लूंगी, उसमें टाइम वेस्ट होगा। मेरे पास बहुत टाइम है, डोंट वरी। बाय। हाँ संजू, आज जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। कहीं जाने के लिए हर दूसरे आदमी से एड्रेस पूछना जरूरी है क्या? It's called human interaction भागी। According to नंदिनी philosophy, सबसे जरूरी रास्ता है, उस पर चलते हुए हम कितने लोगों से मिलते हैं, कैसी यादें बनाते हैं। अब तुम उसका साथ मत दो, ऐसी कोई फिलोसॉफी नहीं है। उस फिलोसफी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हमें। गूगल मैप्स ऑफ। हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना, हमें 1 घंटे में क्लाइंट से मिलना है। अनु, ये सनातन ट्रस्ट कहाँ पड़ेगा? ओ भैया, रोड रिसोर्ट कहाँ है? गूगल मैप्स यूज कर लो। ओ, मैप्स की जरूरत नहीं, हमें तो ह्यूमन इंटरेक्शन करने है ना सिद्धू? ये बताओ ना भाई, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? मुझे मिस्टर वेंकटराव से मिलना है। अगर थैंक्स अनु। మీకోసం వెయిట్ చేసి చేసి క్లయింట్ వెళ్ళిపోయాడు. Ajit, I'm really sorry, Ajit. కావాలనే సిద్ధు నెవర్ చేసి సిద్ధు మిస్కెళ్ళావు. ఆల్రెడీ టోల్డ్ That he is very irresponsible guy, but you still did it. अब तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया। Ajit, shit. एक नंदिनी की फिलोसफी बिल्कुल सही है, पर क्लाइंट जल्दी चला गया यार। अगर ये नंदिनी कहीं मिली तो मैं उसे अच्छे से मारूंगी। अक्का अक्का, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे? सॉरी छोटू, आज मेरा बर्थडे नहीं है। केक केक। हे छोटू, उनका आज बर्थडे नहीं है। बर्थडे नहीं है? मिस्टर वेंकटराव, उन्हें तो यहाँ आए हुए बहुत टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से करीब 1-1.5 साल हो गया है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बेटा, मेरे पास उनका कोई पता नहीं है।
सुनो बेटा, मैंने सुना था कि वेंकटराव जी किसी केस के चक्कर में क्रिमिनल लॉयर पद्मनाभम से मिलने जा रहे थे। अगर तुम उनके पास जाओगी तो शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। लॉयर पद्मनाभम? लॉयर पद्मनाभम। हेलो हेलो हेलो, प्लीज सर 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 रुकिए रुकिए रुकिए। थैंक यू सर। वेलकम। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना है। लिफ्ट मिल सकती है? बिल्कुल आइए सर, बैठिए ना प्लीज। अयो थैंक्स अन्ना। बैग पैन है, मैं फ्रंट सीट पर बैठ सकता है। इसे तो मैं सिर पर बैठाऊंगी, मुंह तोड़ दूं मैं इसका। उसकी पीठ पे दर्द है, चल पीछे बैठ जा। थैंक्स प्लीज। अंधे हो क्या? माय मिस्टेक, सॉरी। उस साइड बैठ जाओ तो सब ठीक होगा। पानी है? वो पानी नहीं, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। ओह थैंक्स। थैंक यू। मिनरल वाटर है ना? पहले से मेरा दिमाग खराब है और दिमाग खराब मत कर। पहले से मुझे कम टेंशन नहीं है, चुपचाप पानी पी। टेंशन? तुमको टेंशन है जी? इस ऐप को डेवलप करने में 3 साल तक मेहनत की है मैंने। हमारे पहुंचने से पहले वो क्लाइंट चला गया। ये तुम्हारा ऐप, ये भी फेसबुक व्हाट्सएप जैसा ही है क्या जी? अब इसे सारी बात जाननी है। बैठ जा मेरी माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसा कोई नॉर्मल ऐप नहीं है ये। दिस इज नेक्स्ट लेवल ऐप। छोटी थे तुम्हें। चलो फिर चलता हूँ जी। थैंक यू सो मच जी। पता है ना बोर्डिंग पास कहाँ से लेना है? उधर बड़ा सा बोर्ड होता है, मैं उधर से ले लूंगा। चलता हूँ। कोई बात नहीं जी। चलो जा। इसमें सिद्धू की गलती नहीं है अजित, सारी गलती मेरी है। मैंने ये जीपीएस बंद करने को बोला था। एक्चुअली मुझे एक डायरी ओए चुप। You both fired. अब तो खुश है ना? लाओ मैं उठा लेता हूँ। Hey, ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। कॉल कर। या इससे दूर ही रहे। See you सिद्धू। हाँ? सर व्हाट? क्लाइंट कहीं पर, उनका कॉल है। लेट्स गो। बटन दबाना। सिद्धू प्लीज कम। Guys, come. कैसी हो भाग्यंगा? हाउ आर यू? अरे तुम हो? कैसे हो? सब बढ़िया? सब क्या है? क्लाइंट है, ये बड़ा क्लाइंट है। सर सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप क्लाइंट हो, मुझे माफ कर दो सर। कोई बात नहीं अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी तुम जैसा ही तो हूँ। ऐसे तो सर देखो सर, मुझे तुम्हारा ऐप बहुत अच्छा लगा जी, और तुम्हारा कैरेक्टर ऐप से भी अच्छा है जी। सुपर है जी। What? देखो जी, ऐप तो मशीन से ऑपरेट करता है, पर उसका इस्तेमाल ह्यूमन करता है ना जी। तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जी, तुमने कहा था ना। ह्यूमन इंटरेक्शन मेरे को बहुत पसंद आया जी, और इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट तुमको ही देता जी। इट्स फॉर यू, एंजॉय। जानू, संजू कहाँ है? संजू, मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही हूँ। तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? हे संजू, वाईफाई काम नहीं कर रहा है। अभी तो मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। ला, मुझे अपने फोन से हॉटस्पॉट देना। हे, सुन रही है? अपना फोन देना। हे संजू, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? किरण ने मुझे चीट किया। उसका मेरे साथ किसी और लड़की से भी चक्कर था। एक मिनट रुकना, उस कमीने को इंस्टा फेसबुक पर ट्रोल करती हूँ। हैशटैग चीटर लगा दे। हाँ, ऐसा ही कर। तुम सब एक ही फ्लैट में रहते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारी फ्रेंड क्यों रो रही है? इसके लिए उसे मैसेज करना पड़ेगा क्या? पागल, एक तो तेरी आंखें रो रो कर लाल हो गई है। रुक, संजू, तुझे एक बात बताती हूँ। उसने कभी तुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। अगर
अगर उसका तुझसे सच्चा प्यार होता तो उसका किसी और के साथ चक्कर नहीं होता। उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब वो तुझे प्यार ही नहीं करता। तुझे भी उससे प्यार नहीं करना चाहिए ना। ये तो क्या बोल रही है? अगर तूने उससे प्यार किया होता तो उसे माफ कर देती, यहाँ बैठकर रो नहीं रही होती। ये प्यार नहीं है संजू। जब दो लोगों के बीच सच्चा प्यार नहीं होता वहाँ ऐसा ही होता है। हाय बेटी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे माफ कर दो प्रीति। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हैव अ ग्रेट लाइफ एंड ऑल द बेस्ट टू यू। सॉरी। ఏడు రంగులవాన రెండు కళ్ళల్లోన కారణం ఎవరంటే అక్షరాల నువ్వే. ఇన్ని నాళ్ళుగా ఉన్నా ఇప్పుడే పుడుతున్నా కారణం ఎవరంటే ఖచ్చితంగా నువ్వే. మబ్బుని మెరుపుని కలిపిన వానల్లే పెదవికి నవ్వుకి పరిచయం నీ వల్లే. చిగురుపై చినుకులే ఎగిరితే ఎంతందం, మనసులో జ్ఞాపకం దొరికితే ఆనందం. విరవిరతిని అరతిని నువ్వే అరవిందమైనది చేరిన వేళ వందనం నీకే. విరవిరతిని అరతిని నువ్వే ఆనందమైనది తాకిన వేళ వందనం संजू, यहाँ पास में कोई पोस्ट बॉक्स है? पोस्ट बॉक्स अब ये काम नहीं करता। तुमने इस पे लेटर क्यों डाला? खाली नाम के लिए लटक रहा है बस अब। घर आने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। घर आने के बाद सब बस गेट वेल सून, टेक केयर बोल रहे थे और बोल रहे थे कि दवाई टाइम पर ले लेना। पार्टी, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुमने कभी उनके लिए खाना बनाया है या फिर कभी तुमने उनके साथ बैठकर खाना खाया है? बस एक दिन अपने फोन के बिना स्पेंड कर, तब तुम्हें पता चलेगा यहाँ बात करने के लिए कितने लोग हैं। కంటు భాషపడుందిరుమా పలికించగలవు. ये दवाई लेनी है, एक पेन ले लो दीदी। दीदी दीदी एक पेन ले लो दीदी। दीदी इधर आओ, ये लो और मुझे सारे पेन दे दो। मत लो दीदी, तुम अच्छी हो इसलिए कह रहा हूँ। ये तो पेन भी काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं, चलो जा अपनी माँ के लिए मेडिसिन ले लो, ठीक है? टिकट दिखा। मैंने देखा तुमने उस लड़के को इतने सारे पैसे दे दिए। हाँ, मैंने सब देखा। नहीं अंकल, ये लो कुछ पैसे रख लो। रख लो बेटा, तुम्हें घर भी तो जाना होगा। मैं इसी रोड पर जाऊंगा, मुझे बाद में लौटा। ఏడు రంగులవాన इसने मोबाइल यूज करना बंद कर दिया। मैं तेरे को इन्विटेशन कैसे दूंगा तू? पोस्ट कर दो। तेरे पास फोन भी नहीं है तो बाहर जाने के बाद तुम उन्हें कांटेक्ट कैसे करेंगे? ఇప్పుడే పుడుతున్నా కారణం ఎవరంటే ఖచ్చితంగా నువ్వే. విరవిరతిని అరతిని నువ్వే అరవిందమైనది చేరిన వేళ వందనం నీకే. విరవిరతిని అరతిని నువ్వే ఆనందమైనది. मेरे पापा वॉचमैन का काम करते हैं। हमारे घर के खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। डोंट वरी, मैं तुम्हारी स्कूल फीस दे दूँ। ఏడు రంగులవాన రెండు కళ్ళల్లోన కారణం ఎవరంటే అక్షరాల నువ్వే. ఇన్ని నాళ్ళుగా ఉన్నా ఇప్పుడే పుడుతున్నా కారణం ఎవరంటే ఖచ్చితంగా నువ్వే. విరవిరతిని అరతిని నువ్వే అరవిందమైనది చేరిన వేళ వందనం
बात करते रहती हो यार, ब्रेन डैमेज हो जाएगा तुम्हारा। हे सिद्धू, तू रुको क्या? अरे सिद्धू, तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? एक मिनट। Let's give him the best statement. सिद्धू आजा, खाना खा ले। मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है। कहाँ जा रहे हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? दादाजी चलिए। क्या सिद्धू? He needs to be treated. मैंने अभी डॉक्टर से बात की है। बहुत बढ़िया। चावल का साथ करी और अचार मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। इन्हें इलाज की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपनापन और प्यार चाहिए इनको। दादी के गुजरने के बाद आपने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनकी मानसिक हालत कैसी है जानते भी हैं आप? डिप्रेशन में चले गए हैं ये डैड। यहाँ किसी के पास टाइम नहीं था इसलिए वो बेचारे चले गए। वो दिमागी रूप से बीमार नहीं थे। सुन सिद्धू, सिद्धू सिद्धू रुको। आपकी तरह पैसे वो भी कमा सकते हैं, पर जो टाइम आपको देना चाहिए था वो टाइम आपके पास नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस पजल में ही हमारी खुशी का राज छुपा है आनंदी। इसमें तो समझ ही नहीं है। सर जज के आने का टाइम हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ फंस गया हूँ? हमें क्या खुश रखता है? नमस्ते सर, मेरा नाम नंदिनी है। मुझे यहाँ पदम अनुपम जी से मिला है। नंदिनी, अरे सुनो, मैं ही लॉयर पद्मनाभ हूँ। आ जाओ। थैंक्स। आ जाओ आ जाओ। सर मैं मुझे पता है तुम नंदिनी हो। मैं अभी तुम्हारा नाम भर के यहाँ आया हूँ। बाय क्रिकेट बुक मिस्टर अकुला वेंकटराव। ओह अकुला वेंकटराव, वो वेंकटराव जो किसी भी कोर्ट सेशन में नहीं आता। जी हमारा ऑर्फनेज केस है। अरे शर्मा जी, तुम कहीं भी खड़े हो जाते हो। हाँ ये बताओ बेटा, तुम्हारा वेंकटराव से क्या काम है? मेरे दादाजी ने मुझे ये कवर उन्हें देने के लिए कहा था, इसीलिए मैं हैदराबाद आई। इसमें क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा शर्मा जी, जरा बताओ तो वेंकटराव के केस का अगला सेशन कब है? हमारे पास बस 3 केस है और तुमने 30 पन्ने पलट दिए हैं। सर उनका तीसरा सीजन आ गया है। हाँ सोमवार को है। हाँ नमस्ते नमस्ते। एक काम करो बेटा, तुम ये कवर शर्मा जी को दे दो। शर्मा जी सोमवार को वेंकटराव को कवर दे देंगे। मुझे ये कवर खुद वेंकटराव को देना है। तो बेटा ऐसा करो, तुम सोमवार को आ जाओ और उन्हें खुद मिलकर लिफाफा दे देना, ठीक है? वो सोमवार को यहाँ आएंगे? हाँ आएंगे आएंगे।
वो वेल्डिंग शॉप वाला जो आदमी है वो नंदिनी को हैरेस कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नंदिनी रो रही है। नंदिनी रो नहीं रही है, रो रही थी। ये सब 1 साल पहले हुआ है। तू कोई लाइव मैच देख रहा है क्या? ये रिकॉर्डेड मैच की हाइलाइट्स देख रहा है? ए चल ना, आलू वैकुंठपुरम देखने चलते हैं ना। चलो मूवी देखने चलते हैं, मैं ट्रीट देने वाला हूँ। वैकुंठपुरम मूवी है, काम बाद में कर लेना यार। चलो गाइस मूवी देखने चलते हैं। अरे ये मूवी 2 साल पहले रिलीज हुई थी। सर्दी में इसी चालू रखा है, बंद करो इसे। ये समर में स्वेटर क्यों पहन के घूम रहे हैं? क्योंकि नंदिनी की डायरी में सर्दी हो रही है। अरे सिद्धू, कल हमें ऐप पेमेंट और डिप्लॉय पर बात करनी है, भूलना मत। तुम्हें याद नहीं है? नंदिनी वेंकटराव से मिलने कोर्ट जाने वाली है। उसे कोर्ट पहुंच रही होगी। मैं पूरे दिन वेंकटराव जी के आने का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आए। अब ना ही मुझे उनका एड्रेस पता है और ना ही मैं उनसे मिल सकती हूँ। क्या तुम्हें नंदिनी हो? हाँ। तुम्हें लॉयर पद्मानाभ हमसे वेंकटराव के बारे में पूछ रही थी। वेंकटराव के बारे में? हाँ। वो कहाँ है? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम इस एरिया में रुकी हुई हो। उन्हें तुमसे मिलना था, एक बार चलकर मेरे साथ मिल लो। चलो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है। इसका दिमाग खराब है क्या? बिल्कुल पागल है। अरे कोई भी वेंकटराव का नाम लेगा तो क्या उसके साथ वो ऐसे ही चली जाएगी? पागल गई की। लॉयर के साथ तुम्हारी बात सुनने के बाद कोई आदमी तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? नंदिनी गाड़ी में बैठ गई है। हे भगवान, क्या करूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। भागी, गेट खोलो। सिद्धू? ये भागी। हाँ? हे सिद्धू, बहुत अर्जेंट। क्या कर रहा है? बस 2 मिनट भागी। बस 2 2 मिनट। जल्दी चलो। मेरे पापा क्या सोच रहे होंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो किसी भी गाड़ी में ऐसे बैठ जाओगी क्या? नंदिनी है ना, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। डोंट वरी। अरे तुम्हें कैसे पता कि नंदिनी बिल्कुल ठीक है? चलो बताओ। सॉरी। तुझे किस बात की जल्दी है? उसे कुछ हुआ होता तो ये आगे के पेजेस कैसे लिखती? क्या पता उन लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया हो और उसके बाद उसने ये डायरी लिखी हो। अब आगे की डायरी मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अरे पागल, ये कहानी पहले ही घट चुकी है, परेशान मत कर, आगे पढ़। भागी, अभी मैं कैलाश पर्वत भी उठा सकता हूँ, लेकिन मुझसे अगला पेज पलटा नहीं जा रहा। मैं कांप रहा हूँ यार। अरे अरे, क्या करूँ? ये क्या कर रहा है तू? ये ले प्लीज मेरे बाप, और आगे पढ़। नहीं रुक जा। मैं ही पढ़ लेती हूँ, कुछ बुरा होगा तो तुझे बता दूंगी। अन्ना अन्ना पेन ले लो। अन्ना 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 सुनो ना। दीदी दीदी, आप वही हो ना जिसने कल मुझे पेन के बदले में पैसे दिए थे? दीदी मैं साई। दीदी दीदी, ये लोग कौन है? दीदी दीदी दीदी, प्लीज मुझे छोड़ दो अन्ना, प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दो अन्ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तू बिना मतलब के टेंशन ले रहा है। कुछ बुरा नहीं हुआ सच में? क्या नहीं। ओ भागी। छी, तेरे भाग गया। उन सबको देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
तो फिर मैंने मदद मांगी और इन अंकल ने मेरी मदद की। ये नंदिनी सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ। शी इज सेफ, शी इज सेफ। बस कर यार अभी। शी इज सेफ। अरे सिद्धू कहाँ ले जा रहे? एकदम से तेरा मुंह क्यों उतर गया? अब तो उसे बचा लिया है तो तुझे तो खुश होना चाहिए ना। क्या हुआ? पर उसे मैं तो नहीं बचा पाया ना। कहीं उसे उस संदीप से प्यार ना हो जाए, मुझे तो डर लग रहा है। क्या पढ़ रही हो? इतनी सारी टिकट्स? हाँ। पागलों जैसी बात मत कर। ये पास्ट की एक स्टोरी है। नंदिनी की स्टोरी में तू सिर्फ ऑडियंस है। कैरेक्टर बनने की कोशिश मत कर। चलो लेट्स गो, गेट रेडी। नहीं। गेट अप। सिद्धू, अरे तुझे तो तेज बुखार है। तेरी मेडिसिन ली? तेरे पड़ोस में डॉक्टर रहता है ना, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर को मत बुला। यही रुक। प्लीज कम डॉक्टर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल फीवर है। और ठीक है, अगर फीवर बढ़ता है और तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके सिद्धू, टेक केयर, बाय। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर संदीप, जीजे हॉस्पिटल। डॉक्टर संदीप, जीजे हॉस्पिटल। डॉक्टर संदीप, वो अपना डॉक्टर संदीप है यार। अरे कहाँ जा रहा है? सिद्धू, 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 क्या कर रहा है तू? संदीप, MBBS, MS, DNB, NCH, FRCS, इसमें भी 16 लेटर्स हैं यार। हाँ तो क्या? नंदिनी ने इसे लव
इसका मतलब नंदिनी अब हमारे पड़ोस में ही है। चल चल उससे मिलते हैं। नहीं, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं नहीं मिल सकता। पागल है क्या? नहीं, चल, मत कर, क्या कर रही है? मेरे लिए नंदिनी को ऐसे दिखना बहुत मुश्किल है यार। अपनी आँख बंद कर ले। तुम दोनों यहाँ कैसे? एनीथिंग सीरियस? You know, actually सभी प्रिस्क्रिप्शन में डाउट है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। Can you come inside? यहाँ कम इन प्लीज कम इन। हाँ सिद्धू, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। हाँ, अपना ही घर समझो यार। प्लीज बी कंफर्टेबल। प्लीज सिट। आना। और तुम क्या लोगे, टी या कॉफी? हाँ नहीं, तुम लोग पहली बार घर आए हो। प्लीज सिट, आई विल गेट समथिंग फॉर यू। फील लाइक योर होम, ओके? हे सिद्धू, ये तो तेरे से भी ज्यादा पॉसेसिव है। घर में नंदिनी का एक भी फोटो नहीं। घर की सुंदरता देख के लग रहा है पक्का कंफर्म नंदिनी का है। चुप हो जा मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। चुप करो। कब की आवाज आ रही? लगता है तुरंत किचन भी शुरू हो गए। जा रहा हूँ मैं, छोड़ मुझे, प्लीज छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे गुस्सा आ रहा है। देख मुझे जाने दे यार प्लीज। वो आ रही है। सॉरी गाइस, मुझे देर हो गई। तुम क्यों आए? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? ओह मेरी वाइफ, आज उसका बर्थडे है। ज्यादा उछलो मत। किसी और की वाइफ के लिए इतना उछलने की जरूरत नहीं है। बैठ। ठीक है। इससे ना बर्थडेज बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने गई है। ओह शॉपिंग करने गई है, मतलब वो अभी घर पर नहीं है। बर्थडे पार्टी कहाँ है? पार्टी आज शाम 6 बजे क्लब हाउस में है। डोंट फॉरगेट, तुम दोनों को आना है। क्लब हाउस में है ना? वन सेकंड। अरे हैव सम कॉफी है? कोई बात नहीं, हमें बर्थडे के लिए शॉपिंग हैव सम बाद कॉफी में है। देंगे। ओके बाय। वाह वाह वाह, क्या पार्टी है यार। लगता है संदीप को नंदिनी बहुत पसंद है। ऐसे बात करेगी तो मैं लौट जाऊंगा। अरे चल ना, तेरा प्यार पवित्र टाइप है यार। चल। Hey, hi guys. Hey Thompson, how are you? Hi, thanks for coming. Where's the birthday girl? Can we see her? She is about to cut the cake. You know what? मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। Come on, join me. Let's surprise her. चलो यार। Hey, तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? Have something? संदीप, मुझे मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा। मैंने तो यही रखा था। आज मेरा बर्थडे है, मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है। पता नहीं मुझे कितने लाइक्स और कितने रिप्लाई आए होंगे। मैं सब कुछ मिस कर दूंगी। संदीप देखो ना मेरा फोन कहाँ है। पता नहीं यूएस और यूके से मेरे कितने फ्रेंड्स ने मुझे अब तक कॉल किया होगा। प्लीज मेरा फोन ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तुम बार बार अपना फोन रखकर कहीं भूल जाती हो। क्या बोल रहे हो? कहीं तुमने उसे घर पर तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मैं अपने साथ ही लाई थी। यही तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ओह थैंक गॉड, फाइनली मिल गया। मुझे अभी अपनी पोस्ट चेक करनी है। बार बार अपना फोन कहीं रखकर भूल जाती हो। सरप्राइज स्पेशल केक, स्पेशली तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड से मंगवाया है। हैप्पी बर्थडे। तुम नंदिनी नहीं हो ब्रो, ये नंदिनी नहीं है। ओहो हैप्पी बर्थडे। ये तो नंदिनी नहीं है भागी, ये नंदिनी नहीं है। ये क्या है? तेरे लिए है। हे हाय। संदीप, तुमने उस दिन मुझे कॉफी ऑफर की थी, याद है ना? आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। ओके। कल मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कॉफी ऑफर की और मुझे फिर से सेम फीलिंग आई। ओके। नहीं, मुझे तो वो कॉफी, मुझे सच में वो कॉफी अच्छी लगी। ओके। पर आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये ड्रेस दी। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। सेम फीलिंग अगेन। मुझे तब भी सेम फील हुआ था। मतलब ये लव नहीं है ना? किसी को चाहने के लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछे तुम किसी से प्यार क्यों करते हो, तो तुम्हारे पास जवाब भी होना चाहिए। तू इतना लेट क्यों है? तुझे पता है वेंकटराव तुझसे मिलने आए थे? कोई पानी दो यार। उन्होंने कहा कि वो संडे को तुझे दिवाकर चिल्ड्रन पार्क में मिलेंगे।
वेंकटराव जी ने कहा कि वो मुझे यहाँ मिलेंगे। ये कवर उन्हें देने के बाद दादा ने मुझे जो काम दिया वो पूरा हो जाएगा। फिर मुझे अपने पेरेंट्स की बरसी के लिए काशी जाना है। फाइनली मैं चली जाऊँ। आपको मद्दा मसाला चाहिए? ठीक है। ठीक है, मैं इसे बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको अलग वैरायटी खिलाता हूँ। इसका पॉट मसाला टेस्टी नहीं है। सुन, मेरा पॉट मसाला के बारे में क्या कहा? तेरे चेहरे से तो अच्छा है। हे, ऐसे नहीं, बस 2 ड्रॉप लेमन जूस। ठीक है दीदी। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देना। नॉर्मल नमक मत डालना, काला नमक डालना। ऐसे मिक्स मत करो, यहाँ दो। अपनी आंखें बंद करो। दीदी, आंखें बंद करो। क्या मैं 1 मिनट आँख खोल लूं दीदी? हे, 1 मिनट। कोई चीटिंग नहीं, ठीक है? दीदी और कितनी देर? अब आंखें खोलो। क्या हुआ दीदी? अपना हाथ आगे दो। सुपर दीदी, क्या मुझे थोड़ा और दोगी? क्या इसका सीक्रेट मुझे बता सकती हो दीदी? प्लीज ना दीदी, प्लीज। ये नंदिनी का सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ आया सर। बेटा तुम नंदिनी हो ना? हाँ, आप बैठिए। मेरा नाम वेंकट राव है। आप ही हैं? हाँ बेटा। आपको पता भी नहीं है कि मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। ऐसा क्या? 1 मिनट, वेंकटराव जी आ गए हैं। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ఏం జరుగుంటదిరా? వెంకట్రావుకి కవర్ ఇచ్చినాక పోరు మళ్ళా ఊరికి చెప్పై ఉంటది। अरे आगे का कहाँ है? ये डायरी पढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि नंदिनी अभी भी मेरे साथ है, लेकिन इस डायरी के खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा जैसे वो मुझसे ठीक से गुड बाय बोले बिना ही चली गई है। ओए सिद्धू, तुम पहले भी जल्दबाजी में गलत इंसान के प्यार में पड़ गए थे। इस बार देर करके सही इंसान को मिस मत कर देना। या वास्तु विश्वनाथन का घर कहाँ पर है? वो जो घर दिख रहा है भाई, ठीक है। नंद, अम्मा, कौन है बेटा? तुम कौन हो? अम्मा जी मेरा नाम है सिद्धू। दरअसल मैं नंदिनी का दोस्त हूँ। मैं हैदराबाद से उससे मिलने यहाँ पर आया हूँ। क्या नंदिनी का फ्रेंड बोल रहे हो खुद को और नंदिनी के बारे में नहीं मालूम? हाँ जानता हूँ ना, अच्छे से जानता हूँ मैं उसे। अगर तुम मेरी नंदिनी को जानते हो तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि नंदिनी और उसकी दोस्त की 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आप नंदिनी की दादी है ना माँ? शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। नहीं बेटा,
नहीं, रुको। उसका एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा लगता है कि जब उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। मेरे वहां पहुंचने तक सब खत्म हो चुका था। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। पापा, आपका मिनिस्टर अब गेम से बाहर है। What? पापा, आपने बढ़िया खेला। अरे सिद्धू, डॉक्टर ने खेलने के लिए कहा है, इसलिए खेल रहे हैं। देखो तो पहले से कितना अच्छा खेला। पापा, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत इम्प्रूव किया आपने। दादा, दैट्स इट, थैंक यू। सिद्धू। हाय माँ। सिद्धू। सिद्धू, तुमने हमें कोई फोन भी नहीं किया? दरअसल वो Thanks for giving back my father. सुनो, साहब का रूम रेडी करो। लक्ष्मी, साइकिल से क्यों? कार ले जाओ। नहीं ठीक है पापा, मैं साइकिल में कंफर्टेबल हूँ। चलो। क्या हुआ? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? अगर उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है तो पुलिस केस होगा। चलो देखते हैं। अरे कैसा एक्सीडेंट यार? बात को समझो सिद्धू, जब तुम उसकी कब्र देख लोगे तभी तुम फ्री हो पाओगे। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ये कह दूं कि नंदिनी हमेशा के लिए मर चुकी है मेरे लिए? भागी, नंदिनी मेरे लिए पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, यही सच है। और वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। बाय गाइस। सिद्धू, प्लीज यार सिद्धू। हे भगवान, दादाजी। अरे सुबह आओ, कुछ मत करो, जो चाहिए बता देना। लो और चावल लो। दादाजी। हाँ, अरे सिद्धू, परोसो परोसो, ये मुझे लीजिए।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर इस बात क्यों कर रहे हैं? चला गया था, मत कीजिए। इंसान चाहे कितना बेटा तुम्हारी दादी के अगर वो इंसान चला जाता है तो बस उसकी अच्छाइयाँ ही याद रह जाती है। जो वो जिंदा होते हुए करना चाहते हैं, अगर हम वो करते हैं ना, उसका मतलब ये हुआ ना कि वो इंसान जिंदा है। अन्नपूर्णा गरीबों को खाना खिलाना चाहती थी, अब ये हो रहा है, देखो बस। दादाजी, अगर हम जा चुके हैं, इंसान की इच्छा को पूरी करते हैं तो वो क्या हमेशा जिंदा रहता है? हाँ, पक्का ना? हाँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप कुछ भी दोगे? हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे 2 पिज्जा चाहिए। क्या तुम्हें खिलाने चाहिए? सुनो, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या आप मेरे चेहरे का ऑपरेशन करवा देंगी? जैसे किसी ने कॉल करके बुलाया हुआ, आप कहीं जाओ। ये ठीक है, क्या आप इसे मेरे लिए अलग रखेंगी? मुझे उन कंडक्टर अंकल को भी पैसे भेजना है। मेरा बैग। ये रहा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ब्रो, हाँ सर, मुझे एक प्लेट मसाला मिक्सचर देना। हाँ ठीक है सर। सुनो, 2 ड्रॉप लेमन जूस डालना और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डालना, ठीक है ना? सर, अपनी आंखें बंद कर। सर, ये नंदिनी दीदी का सिगरेट रेसिपी है ना? तुम कौन हो? नंदिनी का बॉयफ्रेंड। सिद्धू, तुम्हारा कोई लेटर है? बेटा नंदिनी, मैं बस नंबर 41 का कंडक्टर रामकृष्ण हूँ। मेरी की हुई मदद को याद रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।
मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। तुम कैसी हो? उस दिन मैं तुम्हें आईसीयू में देखकर परेशान हो गया था बेटा। मुझे खुशी है कि तुम अब ठीक हो और मुझे खत लिखा है। मैं बताना भूल गया, तुमने जो मुझे अस्थमा की सलाह दी थी। 1 गिलास पानी में अजवाइन का पाउडर मिलाना। अस्थमा अब बहुत ही कम हो गया है। अपनी सेहत का ध्यान रखना। अगर मैं इस बार वहाँ आया तो तुम्हें जरूर मिलूंगा। भगवान सब भला करे। खुश रहो। रामकृष्णा। किसका है? दोस्त का है दादाजी। आओ आइए बैठिए ना। रोज फोन में लगे रहते हो और अब अच्छे काम भी कर रहे हो। एक्सीडेंट होने के बाद जेजे हॉस्पिटल ले जाते वक्त अरे क्या हुआ? ठीक है। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तुम क्या सोच रहे हो? भागी। सर रामकृष्ण जी उस बस में। मैं नंदिनी का दोस्त हूँ। नंदिनी का दोस्त? वही जिसे तुम्हें पोस्ट से 120 रुपए भेजे थे। अब वो कैसी है? वो ठीक है ना? आपने आखिरी बार नंदिनी को कब देखा था सर? हम सरोजा की बाईपास सर्जरी के लिए सरकारी हॉस्पिटल गए थे। वही थी। वही उसे आईसीयू में देखा था। आईसीयू? आईसीयू? सर क्या आपको हॉस्पिटल की वो डेट याद है? हाँ हाँ 20 जनवरी 20 ही थी। हेलो मास्टर, जनवरी 18 को न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि उसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई। फिर आप उसे 20 जनवरी को कैसे देख सकते हो? शायद आपने किसी और को देखा होगा। वैसे भी ये रिटायर होने वाले हैं। नहीं, मैंने उसे देखा था। वो नंदिनी ही थी। कैसे देख सकते हो? कैसे बताओ? सर बुरा मत मानिएगा, एक बार क्या हमारे साथ हॉस्पिटल आएंगे आप? प्लीज सर। नंदिनी 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 नंदिनी। सर पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया सर, इसमें तो कोई इस नाम का एडमिट हुआ ही नहीं है सर। ए सिद्धू, नंदिनी मर चुकी है, यही सच है, मान ले। नहीं, उस दिन सरोजा और मैं यही थे। मैंने नंदिनी को देखा था। उसने मेरी सेहत के लिए नुस्खा बताया था, इसलिए वो मुझे अच्छे से याद है बेटा। अगर 18 को वो जेजे हॉस्पिटल में थी तो वो 20 को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे आ सकती है? एक्सीडेंट के मामलों में पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। आजकल ऐसे ही होता है सिद्धू। सर आपने उसे स्ट्रेचर में देखा था या फिर आईसीयू के अंदर देखा? कुछ याद है आपको? हाँ आईसीयू। तो क्या उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था? मास्क था क्या? सिद्धू याद कीजिए। मास्क मास्क। हाँ सही है। इसका मतलब वो जिंदा थी। सर जब आपने देखा तो क्या ड्रिप लगी हुई थी और उसमें ड्रॉप गिर रही थी क्या? ड्रॉप गिर रही थी। हाँ ड्रॉप गिर रही थी। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। सर आईसीयू में जो स्क्रीन लगी होती है उसमें क्या वो लाइन ऊपर नीचे हो रही थी? याद कीजिए, वो लाइन ऊपर नीचे हो रही थी क्या? प्लीज। जा रही थी। इसका मतलब नंदिनी अभी भी जिंदा है सर। लेकिन बार बार इसकी बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि वो शायद नंदिनी नहीं थी। इसको छोड़िए सर, नंदिनी जिंदा थी। तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। संदीप। हे सिद्धू, हाउ आर यू मैन? तुमसे एक मिनट बात करनी है संदीप। या बोलो। तुम नंदिनी को जानते हो क्या संदीप? सिद्धू क्या? 2 साल पहले मैं उससे मिला था। शी इज अ नाइस गर्ल। उसके बाद मैं उससे नहीं मिला ब्रो। तुम नंदिनी को कैसे जानते हो? मैं उसे 1 साल पहले मिला था यार। और तुम्हारी लव स्टोरीज वो लेटर में सब कुछ जानता हूँ संदीप। ओके कूल। हाउ इज शी नाउ? शी इज नो मोर यार, शी पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। अरे क्या बोल रही हो तुम? वो जिंदा है। कलेक्टर ने उसे देखा था उस दिन। ब्रो दोबारा से याद करो, क्या एक्सीडेंट से अब तक तुमने उसे एक बार भी देखा है? ब्रो अभी मुझे तुमसे ही एक्सीडेंट का पता चला, मुझे नहीं मालूम। संदीप को भी नहीं पता। देखा संदीप को नहीं पता। संदीप को नहीं पता। अरे चलो मेरे। सिद्धू क्या हुआ सिद्धू? मैडम बहुत टाइम के बाद आए हो। मैडम 2 साल पहले नंदिनी जब यहाँ पे आई थी तो उसने क्या बताया था? अपने बारे में कुछ बताया था क्या? याद करके बताइए ना प्लीज। कुछ भी याद आए जो? जी कुछ भी याद आए तो? कुछ नहीं कहा। रशीद, हाँ
आखिरी बार नंदिनी को कब देखा तुमने? मैं कैसे बता सकता हूँ वो कहाँ है? वो पहली बार था जब मैंने उसे देखा था। मुझे नहीं पता वो कौन है। रशीद प्लीज, मुझे सच में नहीं मालूम, मैंने उसके बाद उसे नहीं देखा। नंदिनी इसी फ्लैट में रहती थी। मैंने सुना है कि तू मुझे ढूंढ रहा था। हेलो नरसिम्हा, मेरी इंक्वायरी कर रहा था, तेरा और इसका रिश्ता क्या है? हा? रशीद ने कहा था क्यों पार्क में मिलेगी। मैंने वेंकटराव को मार दिया। क्या तुम ही नंदिनी हो बेटा? आप? मेरा नाम वेंकटराव है। आप वेंकटराव? क्या पूछ रही हो? अगर बुरा ना माने तो क्या आप अपने लॉयर का नाम बता सकते हैं? लॉयर का नाम? क्यों? क्योंकि जब से मैंने आपसे मिलने की कोशिश की है बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, सुनते रहो। आप मुझसे बड़े हैं, इसीलिए झूठ मत बोलिए। उसने कहा अगर मैं अपना नाम वेंकटराव बताऊंगा तो वो मुझे पैसे देगा, मैंने इसलिए ऐसा किया। कवर कहाँ है? कवर कहाँ है? मैंने उसे कवर देने के लिए बोला, उसने नहीं दिया और भागने की कोशिश की। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और वो अपनी जिंदगी के लिए छटपटाने लगी। क्या तूने उसके बाल खींचे थे? सिर्फ बाल ही नहीं और भी बहुत कुछ पकड़ा था। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? चोट लगी क्या? हे भगवान, तुम्हारा तो खून निकल रहा है। और बता, तूने और क्या किया उसके साथ? बता, चल बता ना, कैसे खींचा था? ऐसे ना, ऐसे बाल पकड़े थे, फिर तूने और क्या किया? बता, बोल, क्या किया था? यहाँ पर चल, फेंक मुझे, फेंक मुझे। तूने उसका हाथ मोड़ा था ना, ऐसे मेरा मोड़, मेरा हाथ पकड़।
तूने लड़की को कैसे मारा? कैसे मार सकता है तू लड़की को? नहीं तो खड़ो खड़ो। नंदिनी कहाँ है? नंदिनी कहाँ है? बोल जल्दी बोल। मुझे 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 कौन है? कौन है मुझे? मोजो कौन है? कौन है मुझे बता, मुझे बता कौन है मुझे? बस फोन पे बात हो रही। नहीं पता। अब बोल जल्दी बोल। बता रहा हूँ, सांस तो लेते। बता रहा हूँ, सांस लेते। बकवास बंद कर। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि वह है कौन। फोन करके काम बताता है, काम के बाद पैसे देता है। इस बार उसने मुझे वेंकटराव को ढूंढने के लिए कहा। मैंने वो खबर राशिद को दे दिया। जब हम उस लड़की को फॉलो कर रहे थे तब हमें वेंकट के कवर के बारे में, लॉयर पद्मनाभम के बारे में पता चला। कवर? हमने उसे कवर की वजह से किडनैप किया था। वो निकल गई। हम यहाँ आए और ढूंढे कवर कहाँ है। हमें वो कवर तो नहीं मिला, लेकिन वो वहां से भाग गई। चलो चलो। एक्सीडेंट किया था। ये क्या कर दिया? वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं सिर्फ उस कवर की वजह से। नंदिनी का क्लोज कवर में है। सिद्धू, गाड़ी का तो ध्यान रख। वो कवर ना तो घर पे है और ना ही वो एक्सीडेंट वाली जगह पे है। तो वो गया कहाँ? वो कवर शायद यही कहीं पर छिपाया गया, इसी एरिया में है वो पक्का। नंदिनी की तरह से सोचना पड़ेगा। थिंक लाइक कवर। यहाँ पोस्ट बॉक्स कहाँ है? अरे ये ऐसा ही है, यहाँ कोई नहीं आता। सिद्धू, सिद्धू, जल्दी चल, जल्दी चल। अरे इस लड़के को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि लेटर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। हाँ? वेंकटराव, सिद्धू आपसे मिलने आया है। अंदर भेजो। सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। हेलो हेलो अग्रवाल जी, सब ठीक ठाक है, टेंशन मत लीजिए। एग्रीमेंट होते ही इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप आराम करिए साहब। सर, नंदिनी। नंदिनी कौन? सर, 6 महीने पहले किसी ने नंदिनी का
मर्डर अटेम्प्ट किया था। या 1 मिनट प्लीज। आई थिंक यू आर एट रॉन्ग प्लेस। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ठीक है, हाँ मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। नंदिनी की बात से कहाँ मिला है? बेफिक्र इस पर वज्रा कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये आपका है। देखिए सर, सर मुझे लगता है ये हमारा एमएनसी कंपनी का लेआउट है। तुम जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? श्योर सर। थैंक यू। दिस इज जस्ट अ लेआउट। ऐसे लेआउट्स हमारे पास बहुत है। यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट, काफी मिल जाएंगे। उन लोगों ने नंदिनी को मारने की कोशिश की थी सिर्फ इस पेपर की वजह से। It's just a useless piece of paper. मैं ये पता लगा के रहूंगा कि वो उसे क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे इस पेपर की वजह से। You can keep it, no problem. थैंक यू सो मच। मिस्टर राकेश, do you know anybody call you Mojo? Nice name. I don't know. Thanks for the information. మొత్తానికి ఆ సిద్ధు కూడా నందిని వెతుక్కుంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చాడనమాట. ఇన్నాళ్ళు కవర్ అని దొబ్బేశావు. ఆడొస్తే మాత్రం వదిలేసావు. ఇప్పుడు నేను అర్జెంట్ గా కవర్ తీసుకుంటున్నా. ఏంటో నాకు ఇదంతా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. అదే కాపీ ఇంజనీర్ దగ్గర ఉంది, జిహెచ్ఎంసీలో ఉంది, మన దగ్గర కూడా ఉంది. ఇన్నుండగా అదే ఎందుకు కావాలి? లాజిక్ అందులో ఏముంది? నాకు ఆ కవరే కావాలి. ఈ ఫ్రూట్ తింటున్నావంటే లాజిక్ చెప్తే వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఐ వాంట్ లాజిక్. అలాగే కవర్లో ఏముంది? ఇప్పుడు ఈ వాచ్ పని చేస్తున్నాను, లోపల బ్యాటరీ. లాజిక్ ఇలా చెప్తే ఎందుకను? ఎనీవో థ్యాంక్స్. ఎందుకు? మోజో ఈజ్ ఏ నైస్ నేమ్ అన్నావుగా. మొక్కజొన్న జోగినాథం వెళ్ళి కవర్ పట్టుకురా పో. ఆడావుడు ఐ యామ్ మోజో, నైస్ నేమ్. ఏం చేస్తారా? స్పోర్ట్స్ ఫుట్బాల్ ఇష్టమా? టికెట్ అమ్మా, టికెట్ తీసుకోండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలయ్యా? కొండాపురం టికెట్. ఇదే కొండాపూర్ అయ్యా. అప్పుడే వచ్చేసిందా? లైఫ్ షో షార్ట్. అంతే కదా, కొండాపురం వచ్చేసిందంట. నా కవర్ కూడా వచ్చేసింది. అమ్మా టికెట్ అమ్మా. మీరు హలో మిస్టర్ మోజో. కాలర్ పట్టుకుంటే కవర్ ఇచ్చేస్తాను అనుకున్నావా? కవర్ తీసుకున్న తర్వాత కాలర్ పట్టుకున్నాను. ఒక్కనే రేపు ఆ కవర్ లో ఏముంది మోజో? ఒక్కడే నన్ను అడగకు. కవరు 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 వేరేదైతే అడుగు. నీ ఇంట్లో ట్రెడ్మిల్ ఉందా? లేదు బ్రదర్, ఐ హేట్ రన్నింగ్, యు నో. దెన్ యు విల్ హేట్ మీ. వై? భయ్యా ఆపని చెప్పయ్యా. భయ్యా స్టాప్, ఆపని చెప్పయ్యా. అయ్యా భయ్యా, రన్నింగ్ బస్ అక్కడ 10 గంటలకు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. రే నువ్వు ఆపరా. బస్సే కాదురా, ఐ యామ్ ఆల్సో రన్నింగ్ టు. ఆ కవర్ లో ఏముందో చెప్పు. ఆ నాకుడు కవర్లో ఏముందో చెప్పడు, కావాలంటాడు. అందులో నీకేముందో తెలీదు, ఇవ్వని అంటావు. మధ్యలో నాకు అప్పం పప్పై పాత్ర బాబోయ్. వామ్మో కరెంట్ వారు. రైట్ 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 రైట్. బస్ ఏది, రోడ్ ఏది? కవర్లో ఏముందో తెలియనప్పుడు మరి నందిని ఎందుకు ఫాలో అయ్యావు? నువ్వు లాజిక్ ఆలోచించట్లేదు బ్రో. మా బాస్ అక్కడ కవర్ తీసుకోకుండా నన్ను పంపాడు. ఎందుకు? నేను పోయినా పర్లేదు, వాడు సేఫ్గా ఉండాలని. రాజుల బట్టలకు సీక్రెట్ చెప్పరు బ్రో, ఇలా యుద్ధానికి మాత్రమే పంపుతారు. ఆగింది ఆగింది ఆగింది. బట్టలు రాజు కోసం ప్రాణాలు ఇస్తారు కానీ ఇది ఇస్తారా? ఏ లాజిక్, మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుందామా? భూమిని నమ్ముకున్న వాడిని రైతు అంటారు. అది పల్లెటూరులో.
మరి సిటీలో వాడినే బిల్డర్ అంటారు. దాన్ని నమ్ముకుని సిటీలో టాప్ బిల్డర్ అయ్యాడు మావాడు. ఈ క్రమంలో సిటీ సెంటర్ లో ఉన్న హాట్ ప్రాపర్టీ సనాతన్ ట్రస్ట్ పై కన్నేశాడు. డబ్బు సంపాదించాక నాస్తికులు కూడా మూఢనమ్మకాలు పెరుగుతాయి బ్రదర్. వాస్తు జాతకాలు కూడా నమ్మడం మొదలెడతారు. అందుకే ఆ బిల్డింగ్ ప్లాన్ ని నందిని వాళ్ళ తాత వాస్తు విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి పంపించాడు. మొత్తం ప్లాన్ అంతా చూశాను. మీకున్న సైట్లన్నింటిలోనూ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సైట్ ఇది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదలొద్దు. ఆ మాటలు పొంగిపోయి కొంచెం కింద టెన్షన్ గా ఉంది. ప్లీజ్ చెప్పు. ఆ మాటలు పొంగిపోయి మా డైరెక్ట్ గా బాబా దగ్గర ల్యాండ్ అయ్యాడు. నమస్తే బాబాజీ. ప్లాన్ చూసారా? బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది. జిహెచ్ఎంసీ పర్మిషన్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసాయి. ఇది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ బాబాజీ. బిల్డింగ్స్, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్. వాస్తు విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారు కూడా అప్రూవ్ చేశారు. మీరు సంతకం పెడితే సరిపోతుంది. ఈ సైట్ ను మేము అమ్మదలుచుకోలేదు, ఇవ్వదలుచుకోలేదు. మీరు పదే పదే వచ్చి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ఇబ్బంది పెడితే బాగోదు. అప్పుడు మా వాడికి కోపం వచ్చింది. అదే రోజు రాత్రి పిల్లలందరూ పడుకున్నప్పుడు మనుషులు పంపించి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ చేయించాడు. ఆ యాక్సిడెంట్ లో 6 పిల్లలు, బాబాజీ గారు కూడా చనిపోయారు. బాబాజీ చనిపోయాక ట్రస్ట్ కి కొత్త చైర్మన్ వచ్చాడు. వాడితో సైన్ చేయించుకుని దాని మీద బిల్డింగ్ లేపేశాడు. ఇదంతా తెలిసిన బాబాజీ శిష్యుడు వెంకట్రావు కోర్టులో కేసేశాడు. లాయర్ పద్మనాభం ఎన్ని తంటాలు పడుతున్నా ఎవిడెన్స్ లేకపోవడంతో ఆ కేసు కోర్టులోనే మూలుగుతుంది. అంతా బాగుందని మా వాడు రిలాక్స్ అయిన టైంలో ఆ విశ్వనాథ శాస్త్రికి ఏమి లేచి వచ్చిందో ఆ వెంకట్రావుకి ఎలాగైనా కవర్ ఇవ్వమని. बस वो लोग जानते थे कि कवर में क्या है, ठीक है, लेकिन तूने उसे कहाँ छिपाया है? हमें नंदिनी को नहीं छुपाना चाहिए था. सुन 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 कवर के लिए हमने उसका एक्सीडेंट करवाया. एक्सीडेंट में वो मर गई, तो उसके मरने के बाद हम उस कवर का क्या करते हैं? हम उसे क्यों छुपाएंगे? बोलो बोलो बोलो. हाँ, मुझे सच बता दे मोजो, सच बता मुझे. हे भगवान, नरसिम्हा ने मुझे फोन किया. उसका एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल ले जाने बोलकर मैं खुद हॉस्पिटल गया. हॉस्पिटल से मैं तब निकला जब मुझे यकीन हो गया कि वो मर गई है. और डॉक्टर ने मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया. डेथ सर्टिफिकेट, उस पर सिग्नेचर था डॉक्टर के. जिसने सर्टिफिकेट पे साइन किया वो डॉक्टर कौन था? कौन था वो डॉक्टर? संदीप, स्टॉप इट सिद्धू. कितनी बार बताऊं? मुझे नंदिनी के बारे में कुछ नहीं पता. मुझे जाना है, मेरे पेशेंट इंतजार कर रहे हैं. तुमने नंदिनी का डेथ सर्टिफिकेट क्यों दिया था? डॉक्टर संदीप टी, MBBS, FRCH, 16 लीटर्स है इसमें. सिग्नेचर तुम्हारे हैं ना? नंदिनी ने कोई गलती नहीं की है. अगर नंदिनी तुमसे प्यार करती थी इसका मतलब है कि तुम अच्छे इंसान हो. नंदिनी की फीलिंग्स गलत नहीं हो सकती. मेरी नंदिनी कभी कोई गलती नहीं करती और तुमने भी. नंदिनी पक्का जिंदा है. नंदिनी सेफ है. नंदिनी तुम्हारे साथ है. भागी, नंदिनी जिंदा है. डॉक्टर, जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसकी कंडीशन कैसी है? संजना तो नहीं रही. नंदिनी पर तप्पू दो, वो तप्पू చేయవు. నందిని బతికి ఉంది. నందిని సేఫ్ గా ఉంది. నందిని నీతోనే ఉంది. ఆగే, నందిని బతికే ఉంది. డాక్టర్ సందీప్ తోనే ఉంది. నందిని బతుకుందను ఒక్కసారి చెప్పు బ్రో. యాక్సిడెంట్ అయిన పేషెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది? సంజన చనిపోయింది. నందిని క్రిటికల్ కండిషన్ లో ఉంది. వి ఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ బెస్ట్. नंदिनी क्रिटिकल कंडीशन में है. मेरी बात ध्यान से सुनो. ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होना चाहिए. जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा. మీకు ఎంత కావాలంటే? डॉक्टर, शी इज नो मोर. चलिए. क्या अच्छा है. नंदिनी को बहुत सारे काम है. मुझे भी बहुत सारे काम है. मैं चलता हूँ. नंदिनी को देखना है.
सिद्धू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उससे क्या कहूँ? मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया, अब क्या प्यार करने के लिए बोलूं? कौन है? नंदिनी। हाँ? जो तुम्हें मारना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। कैसे? तुम अच्छे इंसान हो, भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा किया। दीदी, अनीता कैसे हो दीदी? तुम कब आई? तुम कितना बदल गई हो। मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने तो प्रॉमिस किया था कि मैं फीस पे करूंगी। कोई नहीं दीदी, अब मैं काम करती हूँ TCS में। सिद्धू ने मुझे पढ़ाया और मेरी जॉब लगवाई। सॉरी दीदी, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। कुछ भी चाहिए हो मुझे कॉल करना, भूलना मत। सिद्धू कौन है? उसने फीस क्यों दी? हेलो, उठो। वो नंदिनी के बैठने की जगह है। अगर सिद्धू सर को पता लगा तो वो बोलेंगे, इसलिए आप उठ जाओ। भैया, यहाँ एक पोस्ट बॉक्स हुआ करता था। ओ, वो लेटर वाली तुम हो? वो पोस्ट बॉक्स तो कब का चला गया। दादा, यहाँ सनातन ट्रस्ट होता था ना? सनातन ट्रस्ट? अनाथ बच्चों का आश्रम? हाँ बेटा, यहाँ बच्चे तो हुआ करते थे, लेकिन सिद्धू यहाँ आया और उनको नई बिल्डिंग में लेकर चला गया। सिद्धू? कहाँ पर? जीना? दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं अब ठीक हूँ और माँ की तबीयत में भी सुधार है। सिद्धू भैया ने इसे स्कूल में एडमिशन करवाया है। ये देखो, ये हमारा सनातन स्कूल है। सनातन स्कूल तो अनाथ बच्चों का आश्रम था ना? ये बिल्डिंग है। ये क्या है? यहाँ पर फोन्स तो अलाउड नहीं है और मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। दीदी, दीदी तुम? हे, तुम कैसे हो? तुमने तो कहा था कि तुम आओगी, तुम क्यों नहीं आई? अरे जरा काम आ गया था, लेकिन मुझे लिस्ट याद है। लेकिन तुमने वो लिस्ट भैया को दी थी ना? भैया कौन? सिद्धू। हमें जो चाहिए था उन्होंने सब दिया। दीदी, उन्होंने ही मेरा ऑपरेशन करवाया। अब मैं अच्छी लग रही हूँ ना? आप बहुत सुंदर लग रही हो दीदी। अरे सुनो, हाँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम नंदिनी हो ना? इतने दिन मुझे लगा कि तुम नहीं रही, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर सिद्धू ने मुझे बताया कि तुम जिंदा हो। सर, ये सिद्धू कौन है? सिद्धू? अभी जो ये बच्चे कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उसकी वजह वो सिद्धू ही है।
वर्जा कंस्ट्रक्शंस में लगे चार्जेस को साबित करने की कोशिश में तुम कोर्ट का कीमती वक्त खराब कर रहे हो। मैं स्टे ऑर्डर हटा रहा हूँ। मिस्टर मूर्ति, कोर्ट को एविडेंस चाहिए, नॉट योर इमोशंस। सर, मेरे पास एविडेंस है। क्या है इस कवर में? बिल्डिंग के पेपर्स हैं। विद योर परमिशन, क्या मैं तलवार से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? सिविलियन के क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन कैसे मिल सकती है? जज मैं हूं ना, हमारे पास अभी टाइम है। तुम सवाल पूछो। थैंक यू सर। तलवार जी, हाय। ये कंपनी कब स्टार्ट किया आपने? 1993। वर्जा कंस्ट्रक्शंस, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, यू नेम इट, सब जगह हमारे वेंचर्स हैं। आपने ये ट्रस्ट कब खरीदी थी? 2018। 2018, बाबा की डेथ के बाद, राइट? ऑफ कोर्स यस, मैंने तब खरीदी जब उसके छोटे भाई ने प्रपोजल दिया। 2018 में आपने लैंड खरीदा? 2018 February। वहाँ पर लैंड इसके बारे में किसने बताया? It's a prime property. We acquired it and we bought it. So, उससे पहले आप पापा को नहीं जानते थे, राइट? नहीं, लैंड के बारे में नहीं पता था आपको? ऑफ कोर्स नहीं पता था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कब स्टार्ट किया आपने? सर, प्लीज। 2019 March 20। नहीं, नेक्स्ट डे स्टार्ट की। इट वाज एन ऑस्पिशियस डे। सो मिस्टर तलवार, इन 2019। हेलो, तुम और कितनी देर लेने वाले हो? 1 मिनट सर। मिस्टर तलवार, 2018 तक आपको पता नहीं था कि वहाँ पर लैंड है, तो 2017 में आपने प्लान कैसे बना लिया? तुम कहना क्या चाहते हो? सर, उस लेआउट पर डेट डली हुई है। 2017। सर, तलवार के ऑफिस से 2019 का अप्रूव प्लान, मतलब कि उसे परमिशन 2019 में ही मिल चुकी थी। बाबा जी की डेथ के बाद 2017 का ये मैप सामने आया है, आप इसे देख सकते हैं। सच को बाहर आने से रोकने के लिए इन्होंने सारी कोशिशें की, इसका सबूत आपके सामने है। तलवार सिर्फ वास्तु में विश्वास नहीं करते सर, वो रात में बलि लेने में भी विश्वास रखते हैं, और इसलिए इन्होंने बाबा जी और उन 6 बच्चों को रात में मौत के घाट उतार दिया था। भगवान ने इन बच्चों से उनके माँ बाप छीनकर गलती की थी। बाबा जी ने उन बच्चों को पाला था, लेकिन इस तलवार ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस आदमी ने बाबा जी को जान से मार दिया। कम से कम आप तो न्याय कीजिए सर, बच्चों का आश्रम बचा लीजिए प्लीज सर। केस का प्राइम एविडेंस मिलने की वजह से तलवार पर कॉन्स्पिरेसी और मर्डर केस फाइल किया जाता है। दिस कोर्ट विल पर्सनली मॉनिटर दिस इन्वेस्टिगेशन। सिद्धू यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए आया था बेटा। आपके पास उसका फोन नंबर है? लेकिन तुम तो फोन यूज नहीं करती ना। सिद्धू भी फोन यूज नहीं करता। हाँ, तो तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? उसने बताने से मना किया था। वो तुम्हारे लिए हॉस्पिटल आया था, लेकिन वो तुमसे मिले बिना ही चला गया। मैं सिद्धू से मिलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ रहता है। सिद्धू को कैसे पता कि मैं तुम्हारे साथ थी? शायद कंडक्टर ने बताया हो, क्योंकि उसने हमें हॉस्पिटल में देखा था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स। एक लड़का आपसे मिलने आया था ना, सिद्धू नाम का। क्या आप जानते हैं कि वो अभी कहाँ मिलेगा? सिद्धू तो नहीं, लेकिन उसके दोस्त पफी को मैंने गन फैक्ट्री के आसपास देखा था। चलो चल कर देखते हैं। चलो चलो। बेटा भागी। अंकल, आप अचानक? एक बार यहाँ होगी? 1 सेकेंड। हाँ अंकल। नंदिनी, तुम नंदिनी हो ना? हाँ। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। सिद्धू ने मुझे तुम्हारे बारे में जैसे बताया था, तुम बिल्कुल वैसे दिखती हो। बेटा भागी, देर हो रही है। कोई बात नहीं, मेरी दूसरी शादी है। भागी? हाँ। मुहूर्त निकल रहा है। ये मेरी फियांसे है। कोई बात नहीं, इसकी भी दूसरी है। नंदिनी। सिद्धू सिद्धू के बारे में क्या बताऊं? सिद्धू मतलब नंदिनी के लिखे 18 पेजेस। हैदराबाद में सर्दियों में लिखी हुई तुम्हारी डायरी थी ना, तो वो मई में 42 डिग्री में स्वेटर पहन कर आया था। तुमने लिखा था कि किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया है
सिद्धू इकलौता ऐसा है जो बहुत डर गया था। मुझे नहीं पता तुम कितनी परेशान थी। अरे मैंने कहा पेज पलटो ताकि पता चले आगे क्या हुआ। उसके पेज पलटते हुए हाथ कांप रहे थे। तुम्हें संदीप को उस दिन अपना लव लेटर लिखना याद है? वो ऑलमोस्ट कर ही गया था। तब मुझे समझ आया नंदिनी कि एक इंसान दूसरे इंसान को कितना प्यार कर सकता है। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें ताकत दी। जब वो सारी चीजों को पूरा करता है तो फिर वो उस दिन हॉस्पिटल में आया तो मिला क्यों नहीं? मैं उससे अब क्या कहूँगा? बोलो, ये कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ या ये कहूँ कि मैंने उसका प्यार हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया है? क्या तुम एक चीज जानती हो? किसी को प्यार करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए और ना किसी को प्यार ना करने की कोई वजह होनी चाहिए। नंदिनी कहाँ जा रही हो? सिद्धू से मिलने। आज बहुत ही खास दिन है, लेकिन वो यहाँ नहीं। वो चला गया ये कहकर कि नंदिनी का एक और काम बचा है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। मुझे पता है। मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी डेट पास ही थी। एक अमर वेंकटराव जी को देखकर मुझे सीधा काशी जाना है। सिर्फ एक यही चीज सिद्धू को करनी बाकी है। मैं तो सिद्धू को ढूंढ रही हूँ। समझ गई कि सिद्धू का मतलब नंदिनी की यादें हैं, नंदिनी का विश्वास और उसके एक्सपीरियंसेस है। सिद्धू, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या हुआ? सॉरी। चना मसाले, चना मसाले। मैडम, चना मसाले। एक चना मसाला। ओके सर। अच्छा सुनो, हाँ? बस 2 बूंद नींबू डालना, ठीक है?
इट्स ओके कि आपके पास किसी को प्यार करने की वजह नहीं है, लेकिन हम प्यार के एहसास से पैदा हुए प्यार कैसे मना कर सकते हैं? नहीं मना कर सकते।